Good afternoon, Dr. Malhotra, and thank you so much for joining this video series by the Delhi Skill and Entrepreneurship University. It's a pleasure to have you with us today. So there'll be a lot of students and parents who would be watching this video. Just wanted to request if you could please start and help us with an introduction about yourself. Sure. Thank you, Ishan, first of all, for this initiative, wonderful initiative by the Delhi government. And thank you so much for inviting me for this interaction. A brief about me. So I'm Alok Malhotra, and I started my career in banking only. I never wanted to be a banker, though. I always wanted to be a forest officer. But as destiny would take me, most of my family members used to be in banking or insurance or some financial work. So that's how I got influenced by them, and then I entered into it. But having entered, coming from a science background, it was very tough initially. But yes, I gathered ground and धीरे धीरे फिर मेहनत करके and we grew up. Now it's about 33, almost about 32 plus years having associated with BFSI, having worked in bank, now training. So good. It was a very interesting journey, full of learning and full of experiences, full of learnings, full of mistakes. And that's how I am a trainer, because mistakes had prompted me, to probably switch over to training, so that, from my experiences, I could probably share with the students, and then guide them as to what is right, do's and don'ts about working in BFSI. So that's in brief about me. Wonderful, sir. I think starting off with a different aim and then going into banking and now into training sounds very interesting. But sir, how did this actually play out? So I'm sure कि जब आपने vision किया होगा कि you wanted to join, the forest services, and then banking happened. Would love to know how that actually, that decision, how did you take that decision? What attracted you? And similarly, how did you move into this training side, the shift from a banker to a trainer in this field? So this was way back in 1989 when I switched over to this career. I was very happy doing my MSc, Masters in Science, Zoology, that too, focusing on fisheries, entomology, and animal sciences and other things. Or it was not my decision, frankly. हमारे टाइम पे हम लोग डिसीजन नहीं लेते थे, उतना हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती थी जैसे आज. तो सो मेनी कोर्सेज हमारे लिए, तो चलो कुछ नहीं कर रहे तो बीएससी कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, क्योंकि आप या तो एमबीबीएस कर सकते थे या इंजीनियरिंग कर सकते थे, और कुछ नहीं. एमबीए का ज्यादा कुछ पता ही नहीं होता था. बीबीए जैसे कोर्सेज उस टाइम होते ही नहीं थे हमारे टाइम. So, और I tried for MBBS, उसमें नहीं हो पाया तो चलो BSc कर ली. So that's how the decisions were taken. ऐसा कोई, we were not so visionary about our own future. Let me confess that. So घर वालों ने बोला नहीं, बैंकिंग अच्छा करियर है, बैंकिंग करते हो, बैंक में करोगे तो मतलब पेंशन भी मिलती है वगैरह वगैरह स्टोरी करके उन्होंने हमको घुसा दिया बैंकिंग. I was not at all interested, frankly. बट यस, एज आई मेंशन्ड, एक बार जब घुस गए अंदर तो फिर पूरी लगन के साथ, जिसको बोलते हैं, काम किया, सीखा. काफी सारे एग्जाम्स होते हैं हमारे. देयर आर इंस्टीट्यूशंस जिनके साथ हम एसोसिएट होते हैं. तो बिकॉज इट वाज सो क्रिटिकल टू डील विद मनी, सो यू नीड टू लर्न द प्रोसेसेस वेल. तो बहुत टाइम स्पेंड करा सीखने में, बट इट वाज फन. And after that, never looked back. Did you enjoy it? Did you enjoy this process as you? Oh yes. I still remember. I did not know what a debit or a credit is. तो हमारे बैंक में बड़ा आसान था कि जो कलर्ड वाउचर्स होते थे वो डेबिट वाले होते थे, और व्हाइट वाउचर्स होते थे वो क्रेडिट वाले होते थे. तो कभी भी नहीं समझ में आया शुरू के 8-9 महीने के डेबिट और क्रेडिट क्या होता है. बट ये था कि लाल वाला वाउचर डेबिट का है, सफेद वाला वाउचर क्रेडिट का, ऐसे सीखा है. और प्रॉब्लम वो तब हो गई जब बैंक में कंप्यूटराइजेशन आ गया और सारे वाउचर व्हाइट कलर के हो गए. तो फिर बैक टू स्क्वायर वन. तो फिर हमने बोला कि नहीं, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग तो सीखना ही पड़ेगा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है. So that's how the learning has happened. It was fun.
But it's an interesting experience, right? कि आपने BSc के बाद भी banking join किया, and there's so many opportunities for even people who are not from a commerce background. वो भी इस field में आके they can do very well. So ये एक misnomer है कि फाइनेंस सेक्टर के अंदर आने के लिए कॉमर्स की नॉलेज होना, अकाउंट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. आई थिंक स्पेशली हमारे बैंकिंग में, इंश्योरेंस में और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में जब हम डील करते हैं तो सबसे बड़ी चीज की जो जरूरत है वो है कॉमन सेंस, और वो हम सबके पास होती है, बस यूज ही नहीं करते हम लोग. तो वो एक प्राइम चीज है जिसको फाउंडेशन बोलते हैं ना हमारे काम की, हमारी नॉलेज की, वो कॉमन सेंस के ऊपर. कस्टमर से बात करते हैं, कॉमन सेंस चाहिए, समझना है, उसकी जरूरतों को समझना है, कुछ कोई चीज सीखनी है उसके लिए भी कॉमन सेंस चाहिए होती है. बाकी तो रूल्स रेगुलेशंस तो साथ साथ बाद में आते रहते हैं. फाउंडेशन इज कॉमन सेंस. तो यस, बैंकिंग के अंदर और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इसका बहुत जरूरत है. Got it. So sir, आपने already, as you were mentioning, कि you've been also associated with the training aspect and you work with so many different banks, insurance companies के साथ भी आपने काम किया है. So आप, for our benefit of our students, if you can just help them understand what are the kind of job opportunities जो एक graduation करने के बाद you would get in different banks and insurance. What would the students be actually doing on a day-to-day basis? Yeah. So देखो, so there are various levels when you are entering into the BFSI sector. So there is a startup level जिसमें आप you are doing things. So there is a management level where you are managing the work as a manager or maybe as assistant manager or something like that. So how we term it is like there are assistants और associates. जैसे प्राइवेट बैंक की टर्म्स है वहां पे वो क्लर्क वर्ड यूज नहीं करते. पब्लिक सेक्टर बैंक में क्लर्क वर्ड यूज होता है. तो क्लर्क इज इक्वल टू असिस्टेंट और एसोसिएट काइंड ऑफ अ पर्सन इन द प्राइवेट सेक्टर. तो वो वैसा होता है. और उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट लेवल, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट लेवल, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर, तो इस तरह के, चीफ मैनेजर वगैरह, तो इस तरह के टर्म्स वगैरह होते हैं. So either you are doing things or you are managing things. So entry is available to you at both the levels. Okay. So depending upon what kind of offer is there, so you are working in the branch or you are working there in a centralized setup, जिसको हम ऑपरेशनल यूनिट बोलते हैं. तो जब आप ब्रांच में काम करते हो या ब्रांच ऑफिसेज में काम करते हो तो उसमें आप कस्टमर को सर्विस करते हो, उसमें आप सेलिंग भी करते हो, बिजनेस ग्रो करके. क्योंकि कस्टमर जब आपके पास आता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो ग्रो करने की कस्टमर्स के थ्रू ही है. तो उसमें आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो, बिजनेस को ग्रो करते हो, तो सेलिंग भी आ जाता है, सर्विस के साथ सेलिंग भी आ जाता है. और जब कस्टमर की ट्रांजैक्शंस करते हो तो ऑपरेशंस भी आ जाता है. तो ब्रांच में तो तीनों चीजें हो जाती हैं, ऑपरेशंस की नॉलेज, सर्विस की नॉलेज और सेल्स की नॉलेज. लेकिन जब आप ऑपरेशनल सेटअप में काम करते हो, जो बैक ऑफिस, कई जगह हम बैक ऑफिस बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड यूनिट्स बोलते हैं, तो वहां पे आप सिर्फ ऑपरेशंस ही ऑपरेशंस करते चले जाते हो. मतलब आपके पास रिक्वेस्ट आती रहती हैं, आप उसको फुलफिल करते रहते हो. तो इस तरह के काम रहते हैं. बाकी ब्रांच के साथ एसोसिएट होते हैं कुछ लोग, सिर्फ सेल्स में भी काम करते हैं, उनको सिर्फ सेल्स ही करनी होती है. सेल्स ऑफिसर्स होते हैं, रिलेशनशिप ऑफिसर्स होते हैं, उनको सिर्फ सेल्स का काम होता है. उनको सर्विस और ऑपरेशंस, उनका जो कोर एरिया होता है वो नहीं होता. नॉलेज होनी जरूरी होती है लेकिन कोर एरिया नहीं होता. कोर एरिया उनका सेल्स होता है. तो इस तरह के एंट्रीज जो हैं आप लेते हैं. So sir, आपने काफी अच्छे से बताया कि there are, अगर if I can categorize them broadly, 3 टाइप के रोल्स भी हैं which are very popular in terms of either आप ब्रांच पे सर्विस प्लस सेल्स करेंगे या फील्ड सेल्स में, जैसे आपने बताया कि सिर्फ आप एक सेल्स का रोल करेंगे और एक सेंट्रलाइज सेंटर में ऑपरेशंस के रोल करेंगे. बट काफी बार हमने ये भी देखा है, there is always some aversion to sales roles, or there is some like बहुत प्रेशर होता है बैंक में and a lot of students would want to stay away from it. Just wanted to understand your experience also, क्योंकि आपने भी internally also you've seen this, you've been part of the industry. Is it actually very very tough and something that people should be apprehensive of, और या फिर ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही suitable है, या genuinely can somebody make a good career out of this also? Good question and good observation also. Yes, again काफी लोगों का ये मानना है कि
काफी हाई प्रेशर जॉब रहता है, स्पेशली सेल्स का, और सेल्स में लोग टिकते भी नहीं है। देखो, सेल्स में लोग टिकते इसलिए नहीं है क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं होता। ऐसा काम नहीं है कि काम गलत है। अब ये होता है कि माइंडसेट की बात होती है कि मेरा माइंडसेट कैसा है। तो अगर मेरा माइंडसेट सेल करने का नहीं है तो ऑब्वियसली सेल छोड़ो, अगर मेरा माइंडसेट सर्विस करने का नहीं है तो मैं सर्विस भी नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोगों का माइंडसेट ऑपरेशंस का नहीं होता, वो ऑपरेशंस की जॉब जो सबको बड़ी सिक्योर लगती है कि भाई मैं ऑपरेशन में खुश हूँ, पीछे बैक ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, और माइंडसेट की बात होती है। नाउ कमिंग टू द सेल्स, देखो, ऑल ऑफ अस वांट टू ग्रो in our professional career. Now, in BFSI and of course in other sectors also, the person who is having the knowledge of sales, experience of sales, is known to grow faster. जिसको अगर साइंस में हम बोलते हैं सेल्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू योर प्रोफेशनल ग्रोथ। एकदम फास्ट ट्रैक ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि सर्विस में, ऑपरेशंस में ग्रोथ नहीं होती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है। लेकिन सेल्स में फास्ट ट्रैक ग्रोथ ऐसे होती है क्योंकि जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं वो वेल मेजरेबल होती हैं। भाई आपको पता है कि आपको इतना बिजनेस लाना है, आप बड़ी आसानी से दिखा सकते हो, एंड दैट कंट्रीब्यूट्स टू योर ग्रोथ। और जब ग्रोथ की मैं बात करता हूं तो मैं हमेशा 3 चीजों की बात करता हूं। पहला, ग्रोथ ऑफ इनकम, वो तो होती है, सैलरी बढ़ती है आपकी, बोनसेस होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, सेल्स के साथ जुड़े होते हैं। ये इंसेंटिव सर्विस में या ऑपरेशंस में ये इंसेंटिव्स नहीं होते, तो इनकम। दूसरा होता है आपका स्टेटस जब बढ़ता है, क्योंकि प्रमोशंस फास्ट ट्रैक होती हैं सेल्स में, सर्विस और ऑपरेशंस में उतनी प्रमोशंस फास्ट ट्रैक नहीं होती है। इनफैक्ट अगर आपको किसी सीनियर पोजीशन पे रीच करना है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फेवरेट पिक्स होते हैं वो सेल्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं, फेवरेट पिक्स होते हैं। और तीसरा जो होता है नॉलेज, क्योंकि जब आप सेल्स करते हो तो आपको हर तरीके की नॉलेज आ जाए। तो ये ग्रोथ फैक्टर जो है, जो हम ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, ये 3 चीजों से सेल्स जो है एकदम एक एप्ट करियर होता है। सेकंड पॉइंट था आपका प्रेशर का। प्रेशर किस चीज में नहीं होता है? अब मैं आप बोलूं, जब मैं 12th का एग्जाम दे रहा था तो भी प्रेशर में था, मैं जब बैंक का इंटरव्यू देने गया तो भी प्रेशर में था, मेरा तो पेट ही खराब हो जाता था, यू नो। इट यूज टू बी दैट काइंड ऑफ अ प्रेशर, बटरफ्लाइज जिसको हम बोलते हैं, गुड गुड फटाफट बटरफ्लाइज आने शुरू हो गए। तो प्रेशर किस चीज में नहीं है? अभी अगर हम ये इंटरव्यू ले रहे थे 5 मिनट पहले मेरे पर प्रेशर था कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, ईशान किस तरह का सवाल पूछेगा। प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। सो ऑल ऑफ अस गो थ्रू दैट प्रेशर, एंड बिलीव मी, दिस इज अ पॉजिटिव प्रेशर। MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, महात्मा गांधी, मनमोहन सिंह जी, ये लोग जब स्पीचेस देते थे या क्रिकेट में ग्राउंड में उतरते थे तो इनके ऊपर भी प्रेशर होता है, पता नहीं ठीक निकलेगा नहीं निकलेगा, बॉल ठीक पड़ेगी नहीं पड़ेगी, कैच कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैच जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा अपनी स्पीच से। प्रेशर तो सभी के साथ होता है, सो गिवन है ये प्रेशर। बट हाँ, ऐसा प्रेशर नहीं होता कि आपको मार डाले। और क्योंकि हम फील करते हैं ऐसा प्रेशर, उसका सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम अपने आप को अपने काम के हिसाब से परफॉर्म करने लायक नहीं बनाते। यू नो, वी डोंट मेक आवरसेल्व्स कम अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ द वर्क दैट वी आर डूइंग, एंड बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर रिजल्ट्स, एंड देयरफॉर वी हैव प्रेशर। सीधी सी बात है, जब फेल होते हैं और जब एग्जाम देना होता है, दोनों में लेवल ऑफ प्रेशर जो है वो एकदम अलग होता है। जब फेल हो जाता है तो प्रेशर देखो किस तरह का होता है, लेकिन एग्जाम देते हो, तैयारी करते हो, उसका प्रेशर डिफरेंट होता है। इसलिए लोगों को लगता है कि भाई हम नहीं कर पाते, प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर तो हर जगह है, किसी भी काम में। इट इज नॉट अबाउट BFSI, एनीथिंग, even in our personal lives also, as I've given you the examples. Absolutely, sir. And I think 2 things which really stuck to me, and as you said, right, एक तो जैसे आपने बताया कि करियर ग्रोथ भी बहुत फास्ट होता है सेल्स में, और दूसरा उसके साथ ही आपने कहा कि there are times where we are not able to, you know, make ourselves up to the standard of the kind of expectations also that the job demands or the industry demands. So sir, I think एक question ये भी है फिर बनता है इसमें कि वो कौन सी skills हैं या वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए, या anybody who wants to join this industry they should keep in mind
these are the skills I should really, try to build up over the course of during my graduation, say for example, so that I can become capable for this job also and do well, so that I grow fast. करेक्ट, एक्सेलेंट। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब हमें जॉब देती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ये तो नहीं चाहेगी ना कि हम फेल हो जाएं। Any organization would want us to succeed in our career, because जब हम ultimately our goals are aligned to the goals of the organization. तो जब हम सक्सीड होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड होगा, क्योंकि उनके गोल्स अचीव हो रहे हैं। तो देयरफॉर जो भी हमको करवाया जाता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव उसका ये रहता है कि हमें सक्सीड होना ही होना है। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स अस इन अचीविंग आवर टारगेट्स, अचीविंग आवर गोल्स। लेकिन उसके लिए अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखो तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट वन ऑफ द आर्टिकल्स वेयर वी आर प्रोड्यूसिंग crores of graduates across the country, but unfortunately only about 30% graduates are gainfully employed, 70% are struggling. ये स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि there is a gap between what they have learned नहीं बोलूंगा, what they have finished, काम खत्म किया, ग्रेजुएशन किया तो काम खत्म किया, सीखा कुछ नहीं। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि जो जॉब के लिए ट्राई करते हैं कोई मेल ही नहीं है आपस में। जैसे मैंने साइंस करी और बैंक में लग गया, क्या मेल था यार? कोई मेल नहीं था उसका। ऑब्वियसली अगर मैं फिर मुझे स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। या फिर आजकल ऑर्गेनाइजेशंस, पहले तो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे टाइम में बहुत आसान होता था कि इंटरव्यू दिया और घुस गए, एंट्रेंस टेस्ट होता ही नहीं था, जान पहचान हुई और घुस गए। ऐसे भी बहुत रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सम 30-40 इयर्स बैक, ऐसी रिक्रूटमेंट्स हुई। लेकिन आजकल नहीं, आजकल तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आप ऐसे नहीं घुस सकते। तो वो प्रॉपर स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। वो गैप को फिल करने के लिए सबसे बड़ा स्किल जो हमको चाहिए होता है वो होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव गैदर्ड। तो जो भी आप नॉलेज अपनी पढ़ाई में, तो पहली बात तो पढ़ाई वो करो जो आपके करियर से लिंक्ड हो। नॉलेज ले ली, अब नॉलेज को अप्लाई करना सीखो। अप्लाई कैसे किया जाता है? कम्युनिकेट कर, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं, बातचीत करने का तरीका। तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी का लाना, फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि भाई मैं इस इंसान से बात नहीं कर सकता, मैं उस इंसान से आपको इंसानों से ही बातें करनी है थ्रू आउट। तो द फ्लेक्सिबिलिटी जो कि नहीं होती आजकल लोगों के अंदर, तो वो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड का आना। सेलिंग का जो एवर्शन है, माइंडसेट है सेलिंग का, उसमें सेलिंग स्किल्स, सेलिंग की भी स्किल्स होती हैं जो कि आप बना सकते हो, आपको सिखाने के लिए तैयार हैं लोग। तो वो स्किल्स भी आप सीख सकते हो और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस कर करके इंप्रूव कर सकते हो। लैंग्वेजेस के प्रति फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं मेरी तो यही लैंग्वेज है, मैं तो इसी में ही बात कर सकता हूँ, या मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। तो फ्लेक्सिबिलिटी टुवर्ड्स लैंग्वेजेस। कल को अगर आपकी ट्रांसफर किसी ऐसी जगह हो गई जो लैंग्वेज नहीं है, मैं दिल्ली में हूँ, अब मेरी ट्रांसफर केरला के अंदर हो गई, वहां मलयालम चलती है, और वो भी एक रूरल ब्रांच में अपॉइंटमेंट हो गई मेरी। अब मैं वहां पे तो इंग्लिश भी नहीं चलेगी, वहां पे तो मलयालम ही चलेगी। तो if I will be inflexible towards language, then I will not be able to survive in that environment. So flexibility is required towards language. Then communication was one, selling skills was another, application of knowledge, flexibility towards language. So these are, some of the important skills that, we need to develop in ourselves, which will help us to, make ourselves comfortable in our profession. Absolutely, sir. I think very well laid out the different skills also. Okay, खाली knowledge नहीं, but उसकी application, and there are multiple communication skills, selling skills also, which are very important. So, sir, एक question था, क्योंकि आप DSU के साथ भी associated हैं, and we've also, shared a close structure with you, the entire outline. Sir, just by understanding, will Delhi Skill and Entrepreneurship University and this particular course also, the BBA BFSI course that the university is now bringing up. So, how do you view this course? Do you think for the particular person who wants to join this industry, will this course be able to prepare them for this set of role and help them build all of these skills within themselves? Great. So yes, Ishan, I got the opportunity to go through the entire curriculum and the structure in which it is getting ready.
It's a very structured manner in which, you know, the course has been created. And believe me, it is not theoretical at all. Yes, theory is there, but it is not theoretical. Why? Because as I mentioned, पहली skill क्या थी? Application of knowledge. Right. So this course has got all the elements which will tell the students how to apply their knowledge. For example, अगर मुझे पता है कि मुझे किसी से बात करनी है तो पोलाइटली बात करनी है, आई एम जस्ट यूजिंग इट एज एन एग्जांपल, ये मुझे पता है क्योंकि मुझे बताया गया भैया पोलाइटली बात करनी है, लेकिन पोलाइटली बात कैसे करते हैं? मुझे जब मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मुझे सुनना है बड़े ध्यान से, सभी को पता है, लेकिन ध्यान से कैसे सुना जाता है ये कोई नहीं बताता, ये कोई नहीं सिखाता, बता सब देते हैं। अभी तक बताया जा रहा था, इस कोर्स में हमें सिखाया जाएगा कि कैसे करना है। अगर मुझे बैंकिंग की नॉलेज मिलेगी, अगर मुझे स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज मिलेगी, जैसे बीबीए के अंदर हमारे ये सब टॉपिक्स थे, अगर मुझे लॉ की नॉलेज मिलेगी, तो उसको मैं जब अपनी काम में, जब मैं अपने कोलीग्स के साथ इंटरेक्ट करूंगा या मैं अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करूंगा, तो इस नॉलेज को कैसे यूज करूंगा, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो देखने को मिलता है हमारे इस कोर्स में, जो कि दूसरी जगहों पे नहीं होता है। वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट देके छोड़ देते हैं, एक प्रोजेक्ट दे दिया, चलो कहानी खत्म हो गई। लेकिन इस कोर्स में बैठ के करवाएंगे। I have seen those elements in that course, which is very encouraging. As I say that a student will, by the end of these 3 years, if you go through the course, the student will be ready for the industry like hour one, day one, hour one. पहले दिन से, पहले घंटे से काम करने लायक हो जाएगा, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी इंडस्ट्री। So that is very encouraging, and thank you so much for about the description of the course also. I think काफी students जो ये देख रहे होंगे, they will also be encouraged and get to know more about the course, and I'm sure they'll visit our website. And also we've been receiving a lot of calls from our students trying to find out more about the details. Thank you so much for putting that so brilliantly. I think as we also look towards wrapping up this interview, one particular question जो हमें कई बार सुनने को मिला है, कोई tips and tricks from your career or in general, as you're also a trainer and been supporting the academic aspect of it. Class 12 के बच्चे you're at a cusp of that moment where you're making a life decision कि कौन से career में जाना है या क्या आगे करना है life में over the next maybe 3, 4, 5 years. So in order to help them make that decision, कोई tips and tricks that why should they join the BFSI sector, and how can that career actually help them grow as well in their life? Yeah, it is very important to understand, and great that today, institutions like yours and efforts like people of yours, like, which is creating so much of awareness and giving so much of opportunity to the students actually to think what they want to do, So, अब BFSI अगर आप देखो तो it comprises of 3 main industries: banking, financial services, जिसमें सिक्योरिटी मार्केट, एनबीएफसीज, ये लोन्स वगैरह की कंपनीज, मुथूट वगैरह और मन्नापुरम वगैरह का आपने नाम सुने होंगे, और इंश्योरेंस, ये 3 इंडस्ट्रीज इसके अंदर आ जाती हैं। अब स्कोप देखो, अगर आप बैंकिंग देखते हो तो विद इन बैंकिंग देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बैंक्स, विद इन फाइनेंशियल सर्विसेज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, अनगिनत है, नॉट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स। Similarly, insurance also, life होती है, general होती है, reinsurance होती है, so there is a variety which is available. और अगर कोई एक इंडस्ट्री इसके अंदर पकड़ लो, जैसे बैंकिंग है, तो विद इन बैंकिंग देन देयर आर मल्टीपल वर्टिकल्स। आप अकाउंट्स में स्ट्रांग हो, आपको ऑडिट टीम में आना है, आप ऑडिट टीम में आ जाओ, आप एचआर में स्ट्रांग हो, आप एचआर में आ जाओ, आप सर्विस में अच्छे हो, सर्विस में आ जाओ, सेल्स में अच्छे हो, सेल्स में आ जाओ, रिस्क मैनेजमेंट में अच्छे हो, रिस्क मैनेजमेंट में आ जाओ, आप ट्रेनिंग में अच्छे हो, ट्रेनिंग में आ जाओ। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतना वास्ट कैनवस है बीएफएसआई इंडस्ट्री का, और इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के एक्टिव 30-35 इयर्स जिसको हम बोलते हैं, अगर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाओगे तो भी सारे एलिमेंट्स कवर नहीं कर पाओगे। दिस इज सच अ वास्ट इंडस्ट्री। तो क्यों नहीं मैं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक जैसे होता है ना, काम करते हैं तो बोरियत होनी शुरू हो जाती है। विद इन द इंडस्ट्री देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू स्विच ओवर। मैं इस वर्टिकल से निकल के सर्विस छोड़े सेल्स में चला जाता हूँ,
ये वाला सेगमेंट छोड़ के दूसरे सेगमेंट में चला जाता हूँ, तो वो एक मैं रिजुविनेट हो जाता हूँ, मेरा इंटरेस्ट रिजुविनेट हो जाता है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिलती है बीएफएसआई इंडस्ट्री। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखो अगर आप लार्ज पिक्चर देखो, व्हेन यू आर वर्किंग फॉर बीएफएसआई यू आर मैनेजिंग मनी इन द इकोनॉमी। बीएफएसआई के अंदर हम कुछ नहीं करते, सिर्फ लोगों का पैसा मैनेज करते हैं जो भी इकोनॉमी के अंदर है। तो आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के ड्राइवर बन जाते हो, बिकॉज अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो बीएफएसआई इंडस्ट्री के अंदर, इनडायरेक्टली यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ओनली, क्योंकि हम पैसा मैनेज कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। 2 पॉइंट। तीसरा जो मेजर पॉइंट है, ये जॉब मुझे सेटिस्फेक्शन देती है क्योंकि मैं कस्टमर्स के साथ डील कर रहा हूं। कस्टमर्स के ड्रीम्स होते हैं, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी की जरूरत है, किसी को बड़ा घर लेना है, किसी की जरूरत है, उसको इमरजेंसी आ गई कुछ फैमिली, तो उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स, लाइफस्टाइल गोल्स होते हैं उनके, उनको फुलफिल करने में मैं उनकी मदद करता हूँ। यू नो, दिस इज अ लार्जर पिक्चर। और जहां मैं कंट्री की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा हूं, जहां मैं अपने कस्टमर्स के ड्रीम्स को पूरा कर रहा हूं, और जहां मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतना बड़ा कैनवस मिल रहा है, जहां मुझे 30-35 साल किधर निकल जाएंगे मुझे पता भी नहीं चलेगा, बोर भी नहीं होऊंगा मैं, तो क्यों नहीं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करूं मैं? आई शुड ज्वाइन दिस इंडस्ट्री। वंडरफुल सर, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। जैसे आपने बताया, आई थिंक एक डॉक्टर हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, बट एक तरह से ये एक फाइनेंशियल डॉक्टर हो गए आप लोगों के, पार्ट ऑफ द बीएफएसआई इंडस्ट्री। वंडरफुल टू हियर दैट डॉक्टर मल्होत्रा, एंड थैंक यू सो मच। आई थिंक वेरी वेल पुट, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आई एम श्योर ये हेल्प भी करेंगे इन टेकिंग दैट डिसीजन। And I think just at the end, wanted to thank you so much for taking on the opportunity, taking on the time, and supporting Delhi Skill and Entrepreneurship University and sharing your views with our students. Thank you so much, and great to have you with us, sir, today. Thank you, Ishan. It was my pleasure. Thanks once again for inviting me for this discussion. My pleasure.